दिल्ली पुलिस के लोग थे सर, खाकी में। मैं पुलिस तो नहीं कहूंगा सर उनको, वो तो गुंडे ही थे सर एक तरह के। पर मैं कोई भी गैर जिम्मेवारी सर मैं गैर जिम्मेवारी की बात नहीं करूंगा सर। तीनों एमपी सर हमारे इतनी बुरी तरह पीटा सर, किसानों का नाम लेके ये बोलते रहे हैं भी अगर किसानों की आवाज उठाओगे आपका गला दबा देंगे, आपको उठा के ले जाएंगे अगर किसानों की बात करेंगे। सर हमें तो आप बचा लेंगे, किसानों को कौन बचाएगा जो पीट रहे हैं सर ये। ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸਾਡੇ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਜੇ ਚੌਂਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ 10-15 ਮੀਟਰ ਹੀ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ 100 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇ ਚੌਂਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਦੇਖੀਏ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਅਚਾਨਕ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਦਿਖ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। स्पीकर साहब, आप हमारे कस्टोडियन हैं, आप सारे हाउस के कस्टोडियन हैं। तो सर मैं कल का वाकया, मेरे साथ हमारे 3 एमपी सर, रिस्पेक्टेड सर संतोख चौधरी जी जो तकरीबन 70 साल के हैं, हमारे डिम्पा जी, जसवीर सिंह और हमारे औजला साहब। सर हम चारों फार्मर्स का इशू लेके, जैसे आप पता है यहाँ हाउस में भी उठाया सर, तो कैंडल मार्च सर हम 7 बजे ये मेन गेट से सर 1 नंबर से 4 आदमी सर, 144 भी वो 5 आदमियों पे लगती है, अगर 4 आदमी सर, कोई भी पीए, कोई सिक्योरिटी, कोई कुछ नहीं सर, 4 आदमी सर यहां से 7 बजे निकले हैं सर। 10 या 15 मीटर आगे गए हुए हैं जहां विजय चौक पे हमने सर वो कैंडल लगानी थी सर, बस लगा के हमने अपना प्रोग्राम किसानों के लिए वहां पे खत्म करना था। सर अचानक क्या होता है, विद इन सर 10 मिनट सर किसानों की बात कर रहे हैं जहां तो सर एकदम 100 के तकरीबन सर दिल्ली पुलिस के लोग थे सर, खाकी में। मैं
पुलिस तो नहीं कहूंगा सर उनको, वो तो गुंडे ही थे सर एक तरह के, पर मैं कोई भी गैर जिम्मेवारी सर मैं गैर जिम्मेवारी की बात नहीं करूंगा सर। सर हुआ क्या, बीजेपी वाले सर आप भी सुने, ये तो एमपीओ का मामला है, कोई हम किसी पार्टी के अगेंस्ट तो कुछ कर नहीं रहे थे, हम तो पैदल मार्च से राष्ट्रपति भवन जाना चाहते थे, टाइम लेना चाहते थे, 4 आदमी थे सर। हुआ क्या सर, एकदम दिल्ली पुलिस घबरा गई, उन्हें यह नहीं पता लगा भी ये एमपी हैं, जहां कहीं से किसान आ गए 4, क्योंकि किसानों से इतना भयभीत है, किसानों के इश्यू से इतना डरा हुए हैं सर। हुआ, आप सर मालिक हैं हमारे सर, 4 एमपीओ सर आपकी, हम तो आपके सर परिवार हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं। तो सर क्या हुआ, बुजुर्ग तो नहीं है, बुजुर्ग सॉरी सर बड़े भाई हैं सर, बड़े भाई सर। हुआ क्या, एक तो इन्होंने सुबह पहले टुकड़ा फेंक के देखा, एमएसपी के नाम पे किसानों को टुकड़ा तो फेंका। आपकी बात कह दो, घटना ठीक है, वो सर किसान कभी मानेंगे नहीं। फिर क्या हुआ सर, इनको ये पता ही नहीं चला कितना बड़ा फेलियर है, जो टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी है सर, उसके सामने 4 एमपी सर ब्रूटली 100 आदमियों ने, इनको लगा भी प्राइम मिनिस्टर साहब 7 नंबर गेट से सर, पीएम, हम जानते हैं पीएम की सिक्योरिटी सर, पीएम कितनी उनकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री हैं, सबके हैं, लेकिन सर इन्होंने ये देखा नहीं। हमने कहा भाई हम पार्लियामेंट से आए हैं, उनके साथ बैठते हैं प्राइम मिनिस्टर के, पर सर 4 एमपीओ को सर, एक तो इतनी बड़ी गलती भी, उनको ये नहीं पता पार्लियामेंट के सामने भी ये एमपी है जहां कोई किसान है। मतलब अगर कोई किसान होता तो इन्होंने सिर्फ पगड़ी है जहां, वो देख के इतनी बुरी तरह सर, मेरे फ्रैक्चर हुआ है सर, बुरी तरह सर, अब मैं ठीक हूं, फिर दोबारा सर रप्चर हो गया। वो तीनों एमपी सर हमारे इतनी बुरी तरह पीटा सर, किसानों का नाम लेके, ये बोलते रहे हैं भी अगर किसानों की आवाज उठाओगे आपका गला दबा देंगे, आपको उठा के ले जाएंगे अगर किसानों की बात करेंगे। 1 मिनट व्यवस्था दे रहा हूं। माननीय सदस्य, मुझे रवनीत सिंह जी और संतोष सिंह जी चौधरी का पत्र मिला। ऐसे सदन कल रात को 12:30 बजे तक चल रहा था। अगर आप सदन में भी आकर मुझे बताते, मुझे माननीय सदस्य ने, एक सदस्य ने जब राष्ट्र में जब मैं जाने लगा, जब मुझे जिक्र किया था कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, तो मैंने इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट मंगाई। जो कुछ भी आपका पत्र मुझे मिला है, मैं निश्चित रूप से सभी सदन के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि सदन के सभी सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, और मैं इस संबंध में आधिकारिक पूर्ण जानकारी मंगा रहा हूं। आपके उठाने के पहले मैंने जानकारी मंगाई है, रिपोर्ट मंगाई है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप विश्वास करें, आपकी सुरक्षा, आपकी यहाँ पर बोलने की सुरक्षा भी और बाहर की सुरक्षा की भी हर मेरी जिम्मेदारी बनती है जब पार्लियामेंट चल रही है। और यूं भी मैं व्यक्तिगत रूप से भी कभी मुझे कोई माननीय सदस्य मिलता है, कोई बात बताता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर माननीय सदस्य का सम्मान और विश्वास कायम रखूं। ये मुझे लगता नहीं कि व्यक्तिगत रूप से भी कभी कोई मिला हो, मैंने हर माननीय सदस्य मिला तो उसका विश्वास कायम रखा। आप निश्चित रहो, इस विषय को मैं व्यक्तिगत देखूंगा, व्यक्तिगत। हाँ बताएं, आप बताइए, रंजन जी बता दें। अच्छा सर, आपका यही हमसे विश्वास था भी जब आपके सामने सारे एमपी सर, हम आपके सामने रिक्वेस्ट करेंगे, आप ये जो ब्रूटली, जो एक मैं समझता हूं खाकी सर देश लोगों को बचाने के लिए है, उनकी रक्षा करने के लिए सर, आगे से ऐसा ना हो, ये सख्त, क्योंकि किसान सर रोके जा रहे हैं यहाँ पे आने के लिए किसानों को। सर अगली बात, अब बड़ी बात सर, आगे हमारे लीडर निश्चित सर, लीडर हाउस करेंगे सर, पर किसानों के नाम पर सर ना आपने जो करें। विषय उठाया है, मैं व्यक्ति से, मेरी जिम्मेदारी है हर मान्य सदस्य की। पर सर हमें तो आप बचा लेंगे, किसानों को कौन बचाएगा जो पीट रहे हैं सर? ये अब जो सेंट्रल सरकार पीट रही है किसानों को, उनको कौन बचाएगी मारने से सर?